Students, our poem The Keeping Quiet is written by Pablo Neruda. In this poem, he requests the readers, through this poem, he wants to convey a message to the mankind. What is that message? Keep quiet. Here, keeping quiet means what to do? Means stop all activities, do not talk, do not move, but only introspect. Introspect means thinking inside, talking to oneself in one's own mind. बाहर नहीं, अंतर से बात करनी है हमने अपने आप से. So what does the poem start? How it is the beginning of the poem is, now we means the poet and we all readers will count to 12 and we will all keep still. Still means quiet. कि हम ही को 12 तक काउंट करेंगे, मीन्स 1 to 12. और जितने टाइम में हम 1 to 12 काउंट करेंगे, काउंटिंग भी साइलेंटली करनी है और हम स्टिल रहेंगे, मीन्स हम क्वाइट रहेंगे. जैसे बचपन में हम गेम खेलते थे ना, स्टॉप, तो हम कुछ देर के लिए पर्सन को हम स्टॉप कर देते थे. द सेम थिंग इज हियर. फॉर वंस मीन्स फॉर ओनली वन टाइम ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मीन्स हम कुछ बोलेंगे भी नहीं. लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड. फॉर अ सेकेंड हियर मीन्स for the time in which we count 1 to 12, and not move our arms so much, means we do not even move our body parts. बोलना भी नहीं और बॉडी पार्ट्स को मूव भी नहीं करना. It would be an exotic. Exotic means strange. Very exciting moment होगा ये. How? Without rush means when all the people on this earth will stop all activities, whatever they are doing, they will stop. Means suppose कर लो, आप just imagine that all the people on this earth, अर्थ के सरफेस पे ही रहते हैं ना हम, कोई ऐसी सुपर पावर बाहर से हमको कह दे स्टॉप, तो वो पूरी अर्थ एकदम स्टॉप हो जाए जहां वो है, तो कितना एक्सोटिक, कितना स्ट्रेंज, कितना एक्साइटिंग मोमेंट होगा. सारा रश विल स्टॉप. Without engines mean there will be no noise of engines moving. We would all be together in a sudden strangeness. Exotic strange moment hoga and we all will be united. How we will be united? Means हम सबने एक ही काम करना है. That is what? Keeping quiet. We all will keep quiet. हम चुप हो जाएंगे. तो वो हम सभी एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं ना. And what is that activity? We all are silent. So that is a sudden, strange, exotic means exciting moment. Clear students? अब आगे next lines. Fishermen, अब वो different people के कुछ examples दे रहा हमको. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Fishermen sea पे क्या करने जाते हैं? To catch fish. तो वो फिश की एक टाइप का नाम बोल रहा whales. उनको हार्म नहीं करेंगे, मीन्स कैच नहीं करेंगे, वो अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और सी पर ही जो साल्ट गैदरर्स हैं वो भी अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे. दे ऑल्सो विल नॉट कलेक्ट साल्ट. वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट. यहाँ पर नॉट वर्ड नहीं है बेटा, वो बाय मिस्टेक आ गया प्रिंटिंग में ही, ये मैंने PDF ही निकाली है. वुड लुक एट देयर हर्ट हैंड्स. वो क्या करेंगे? इन प्लेस ऑफ गैदरिंग साल्ट, जब उनके हैंड्स में साल्ट नहीं है तो दे वुड लुक एट देयर हैंड्स. वो अपने हैंड्स को देखेंगे. विच आर वुंडेड बाय गैदरिंग साल्ट. साल्ट गैदर करने से साल्ट ने उनके हैंड्स को क्या कर दिया हुआ है? हर्ट कर दिया हुआ है, कट्स लग गए हुए हैं उनके हैंड्स को. They would look at the cuts on their hands. अब ये दो एग्जाम्पल्स आ गई, फिशरमैन की और साल्ट गैदरर्स की. Those who prepare green wars. What are green wars? Green wars means war against nature. Those who are destroying nature.
Wars with gas. War with gas means gaseous war. Gaseous war कौन सी होती है? न्यूक्लियर वॉर. War with fire. War with fire means war with guns, war with shots, war with bombs. तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ वॉर्स मेंशन करी हैं, वार अगेंस्ट नेचर, न्यूक्लियर वॉर एंड बॉर्डर पे जो वॉर्स होती हैं. व्हाट विल हैपन? विक्ट्रीज with no survivors. Means whenever there is a war, one person या one country or one nation is victorious, wins the war, and the other loses it. But what will happen in these wars? What will be the ultimate reality of the wars? No one will survive. कोई भी survive नहीं करेगा. You just imagine, suppose we are exploiting nature. Ultimately the day will come when there will be no nature. तो हम नेचर नहीं रहेगी, अर्थ नहीं रहेगी, हमारा हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. हम कहाँ से विक्टोरियस हुए? अल्टीमेटली जो विक्टोरियस पीपल हैं वो भी लूजर्स ही बन जाएंगे in any kind of war. Here I always give one example. Suppose 2 persons are standing facing each other. Both have guns in their hand and both shot each other and both are dead. दोनों की गोली एक दूसरे को लग जाती है, दोनों ही मर गए. एंड हु इज द सर्वाइवर? हु विल एंजॉय दिस विक्ट्री? कोई भी नहीं करेगा ना. तो दिस विल हैपन वन डे ऑन दिस अर्थ. वो हमें बता रहा. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. इन प्लेस ऐसे जो लोग हैं ना, दोज हु प्रिपेयर, जो वार मॉन्गर्स हैं, वो क्या करेंगे? दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स का मीनिंग क्या हुआ? दिस टू पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स मीन्स टू हैव पीस इन देयर माइंड, to stop preparing wars and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो वो भी अपनी सारी ये जो वार प्रेपरेशन की एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देंगे और ब्रदर्स के साथ, ब्रदर्स कौन से हैं? एनिमीज हैं, जो जिनके अगेंस्ट हम वार कर रहे हैं, उनके साथ हम ब्रदरहुड के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें. और क्या क्या मेंटेन करें? Put on clean clothes mean maintain peace in the society. Clear हो गया? आगे next. Life is what it is about. I think इसमें ना 1 or 2 lines missing है, वो आपकी टेक्स्ट में होंगे. What I want, I am not talking about death. I do not want any truck with the death. फिर उसके बाद ये लाइन आती है, life is what it is about. So here the poet wants to say no truck with death means he is not talking about death. वो ये नहीं चाहता कि हम सब मर ही जाएं, means permanently inactive हो जाए. Life is what it is about means life means action. Life तो चलती ही रहनी है. But we should stop for 1 second, introspect and then start afresh. फिर दोबारा शुरू करनी है अपनी एक्टिविटीज. पर इस बार हमने कैसे करनी है? With thoughts. If we were not so single-minded, single-minded here means selfish. अगर हम selfish ना होते about keeping our lives moving, हम अपनी लाइफ के बारे में ही सोचते हैं ना हमेशा. तो if we are not single-minded, if we are not selfish, and for once could do nothing, सिर्फ एक ही बार हमने ऐसा करना है ना, stop करना है. Perhaps a huge silence. There will be a great silence on the earth. Last first stanza में भी यही बात बोली थी. Might interrupt this sadness. ये जो huge silence आ जाएगी ना अर्थ पे, on the face of the earth, that will interrupt. वो इंटरप्शन बनेगी हमारी एक्टिविटीज में. एक इंटरप्शन, हम टीवी सीरियल देखते हैं तो बीच में इंटरप्शन आती है ना, एड्स आ जाती हैं, तो वो हमारी एक्टिविटीज में एक इंटरप्शन आ जाएगी. Might interrupt this sadness. कौन सी sadness? Which sadness is talking about? Sadness of never understanding ourselves. हम खुद को नहीं समझ पाए. We have not understood what is the motive of human life. हमारी लाइफ का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, इस बात को ना समझना ही हमारी सबसे बड़ी सैडनेस है. And of threatening ourselves with death.
और इस सैडनेस में ही, इस इग्नोरेंस में ही वी आर इनवाइटिंग आवर ओन डेथ्स। जैसे हमने अभी वो 2 पर्सन की एग्जाम्पल मैंने आपको दी, तो हम अपनी ही तो डेथ को इनवाइट कर रहे हैं। इफ वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर, if we are indulging in nuclear wars, if we are indulging in wars against other countries, तो war begets war. And the ultimate result is destruction, chaos, violence, and there is no peace. Those who even survive after wars, उनकी लाइफ में भी पीस नहीं होता, because they have lost their kins and kith and kins. अपने nears और dear ones को तो उन्होंने lose किया होता है ना, so they also are not happy in their life afterwards. In the last line, there is a difference. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Beginning में poet ने क्या कहा था? We will count up to 12. हम means मैं भी और आप भी. अब poet क्या कह रहा है कि मैं count करता हूँ 1 to 12 और आप अब चुप हो जाओ। मीन्स मैंने आपको स्टॉप बोल दिया, आप सभी स्टॉप हो जाओ और आई। और परमानेंटली स्टॉप नहीं होना, उसने कह दिया ना कि परमानेंटली स्टॉप हमने नहीं होना, सिर्फ उतनी देर तक की स्टॉप होना है। 1 to 12 काउंट करो, उसके बाद फिर से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करो। बट इन द मीन टाइम जब आप साइलेंट हो, आपने क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन करनी है। इंट्रोस्पेक्शन अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि थिंकिंग and talking to one's own self in the mind silently. अपने ही अंतर मन से बात करनी है, बाहर नहीं बोलना। That is called introspection. और अपने अंतर मन से, अपने अंतर से क्या पूछना है कि जो भी एक्टिविटीज मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो एक्टिविटीज राइट है, क्या वो क्रिएटिव है, या कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही हैं। तो फिर I will go means after giving one message to all the human beings, तो पोएट वापस चला जाएगा। उसने हमें सिर्फ एक थॉट दे दिया और अब उस थॉट के अकॉर्डिंग हमने एक्ट कैसे करना है